Good morning everybody. So in the last video we discussed about the proof of Ohm's law, and we discussed the expression for the resistance and the resistivity, and more or less we have already discussed how the factors like length, area and material and temperature affects resistance, and for resistivity how material and temperature depends affect resistivity. Now today we will discuss about the current density. Current density is noted by J. Current density is noted by J. Now what does this current density means? It means कि the amount of current flowing through a particular cross sectional area. Suppose that this is your cross sectional area and the amount of current passing through this cross sectional area is your current density. Means इस area से कितना amount of current pass कर रहा है, that is the density, current density of this particular area. So it is noted by I, its expression is written by I by A. Now we know, we have already discussed that I was equal to you can see here, this equation you can see it was written as I is equals to n square A tau by m. M was mass of electron, this was free charge density, and E. Yes. Now this was I, current. This was current. Now if we substitute this factor, this expression over here, so what we will get? J is equals to I by I, for I we can write n e square A tau by m into E, and there is one area factor, so this area gets cancelled out, so J is equals to n e square tau by m into E. Now you can see n e square, n is for any metal, this n is constant, and E square is charge of the charge of electron. Tau was the average relaxation time. What was that average relaxation time? That at average means at constant temperature, means this tau remains constant, and for a given material also, and m is the mass of electron. So you can see this whole term is a constant term, so we can write one more thing. It was somehow it is similar to that of I directly proportional to V, है ना. ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के जैसा ही आ रहा है, जैसे है ना. I के जगह में यहाँ करंट डेंसिटी है, V के जगह में यहाँ पे फील्ड है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. अभी मैं आगे लिख देता हूँ. दिस इज ऑल्सो नोन एज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ. ना यहाँ पे देखे जरा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? तो अगर यदि देखा जाए तो m बाई एन ई स्क्वायर टाउ इज रो. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? m बाई एन ई स्क्वायर टाउ मीन जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं j इज इक्वल्स टू e बाई रो. E by rho, you can say rho is equals to m by n e square tau. तो इसको रिवर्स कर दे तो 1 बाई रो इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कहीं मिस्टेक क्या मैंने, यस मैंने कहीं मिस्टेक किया है.
J by E is equals to rho. नहीं, ठीक है, सॉरी, तो इट इज़ करेक्ट. सो ठीक है, तो J इज इक्वल्स टू E बाय रो. सो दिस कैन बी written as 1 by rho. 1 by rho is also known as conductivity. 1 by rho is also known as conductivity. So this can be written as J is equals to sigma E. J is equals to sigma E. Now ये जो है हमारा दिस इज कॉल्ड मिनिएचर फॉर्म. इसको अगर यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर. नाउ तो दिस इज व्हाट इज सिग्मा. तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी. सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी is means it is 1 by rho, means the reciprocal of conductivity is your sigma. तो सिग्मा का वैल्यू में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 by rho. तो ये हो जाएगा मेरा NE स्क्वायर टाउ बाय m. तो दिस इज योर कंडक्टिविटी. नाउ यहाँ पे रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या सिग्निफिकेंस है इसको समझने की कोशिश करें. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में जैसे कहने का मतलब क्या है कि जब मैं मेटल की मैं बात करता हूँ, है ना, जब मैं मेटल की बात करता हूँ तो मेटल में क्या होगा कि नंबर, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं जब मेटल की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर. तो वहाँ पे मैं बात करता हूँ कंडक्टिविटी की. तो मैं बोल सकता हूँ कि मेटल फॉर कंडक्टर, जैसे हम लोग बोले, इसका मैं एक बहुत ही सिंपल लेमन एग्जांपल मैं देना चाहूँगा. जैसे कि अगर यदि मैं चीनी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे मीठेपन की मैं बात करता हूँ, है ना. तो उसी तरह से जैसे मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ कंडक्टिविटी की मैं बात करता हूँ, है ना, कि जहाँ पे कंडक्टर में ये N हाई होगा तो यहाँ पे सिग्मा भी हाई होगा. मीन्स जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा, मतलब कि दैट इज़ गुड कंडक्टर. अभी उसी तरह से मैं अगर यदि इंसुलेटर की तरफ मैं बढ़ूँ, मैं कंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ मैं बढ़ूँ फॉर इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के केस में जैसे यहाँ पे तीखापन के केस के लिए हम लोग चीनी का एग्जांपल नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मिर्च का एग्जांपल देते हैं. तो कहने का मतलब हो गया कि जितना मिर्च हमेशा तीखा ही बढ़ाएगा. ऐसा नहीं है कि चीनी डालने से तीखापन कम करेगा, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है. तो जब भी हम कंडक्टर की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा कंडक्टिविटी लेंगे, और जब भी हम लोग इंसुलेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग हमेशा रेसिस्टिविटी लेंगे, क्योंकि रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो उसका इंसुलेशन का प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का कोशिश करेगा. तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर यदि कंडक्टर की मैं बात करता हूँ तो हम लोग बेसिकली कंडक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं, और जब भी मैं इंसुलेटर की बात करता हूँ तो हम लोग रो को ध्यान में रखते हैं. इंसुलेटर के लिए ये कहना उतना उचित नहीं होता है कि फॉर इंसुलेटर कंडक्टिविटी इज लेस. अरे ये कह सकते हैं कि फॉर इंसुलेटर रेसिस्टिविटी इज हाई. तो कंडक्टर से कंडक्टिविटी होता है और इंसुलेटर के लिए हमेशा हमारा रेसिस्टिविटी ही देखते हैं. मीठा करने के लिए हम लोग चीनी ही डालेंगे. ऐसा नहीं है कि मीठा करने के लिए हम मिर्ची कम डालें, है ना, ऐसा नहीं होता. या फिर तीखा करने के लिए हम लोग मिर्ची डालेंगे, ऐसा नहीं है कि तीखा कम करने के लिए हम लोग चीनी डालेंगे. मैंने कि ये सिंपल सा लेमन एग्जांपल है, फालतू सा, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये याद रखेंगे. नाउ दिस वॉज योर मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ये करंट डेंसिटी आ गए. करंट डेंसिटी भी हम लोगों ने पढ़ लिया. एक और कंसेप्ट है यहाँ पे मोबिलिटी की. तो यहाँ जब मैं बात करूँगा मोबिलिटी का, तो मोबिलिटी के लिए जैसे मैं एक अगेन यहाँ पे इसको मैं म्यू से डिनोट करता हूँ. यहाँ पे मोबिलिटी के लिए मैं एक और एग्जांपल मैं आपको दूं. सपोज दैट ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है.
मैंने दोनों को 100 रुपये दिए, 100 रुपीज़ इसको भी दिया और 100 रुपीज़ इसको दिए। ये 100 रुपीज़ में ये काफ़ी खुश हो गया और ये अपना काम करने लगा, मैंने घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। 100 रुपीज़ में ही काफ़ी खुश हो गया, है ना। 100 रुपीज़ दिया, ये ए उसमें से ही गया, अपना आइसक्रीम वाइसक्रीम खाया, जो करना था किया, मस्ती किया। अभी ये बी को मैं दे रहा हूँ तो ये बी को ये कम पड़ रहा है, ये नहीं चलना चाह रहा है, ये जाना नहीं चाह रहा, बोल रहा है कि भाई इतने में तो मैं पिक्चर भी नहीं देख पाऊँगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने जब सेम अमाउंट दिया लेकिन ये खुशी से चल पड़ा और ये अभी तक ये रो ही रहा है, तो कह सकते हैं कि ए इज़ हाईली मोबाइल। ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ये हाईली मोबाइल हो गया और ये लेस मोबाइल हो गया। तो मोबिलिटी के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, मोबाइल मतलब कि चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि यहाँ पे स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड, इसका एक्चुअली एक्सप्रेशन होता है ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो मैंने दिया 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ में ये चलना, एक मेटल ए के इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दिए, बहुत खुशी से चलना स्टार्ट कर दिए। तो उसको हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर ए का मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई है और बी को मैंने उतना ही फील्ड दिया बट ये चलना स्टार्ट नहीं किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी का मोबिलिटी कम है ना। जैसे मैं कहूँ कि ये दो कंडक्टर है, अभी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मैंने दिया, फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो ये फटाक से चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ का मोशन बोले कि फास्ट हो गया, ये फास्ट हो गया मतलब कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका हाई हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाई हो गया कहने का मतलब क्या हो सकता है कि मोबिलिटी हमारा हाई हो गया। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। और अगर यदि ये मेटल बी है, ये मेटल बी है और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो है, ये स्लो है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड इसका कम हो गया, इसका मोबिलिटी भी कम है। ये हम लोग अगर इसको मैं देखूं, इससे हमारा करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई अगर कह सकते हैं कि जहाँ मोबिलिटी हाई होगा, जहाँ मोबिलिटी हाई है मतलब वहाँ ड्रिफ्ट स्पीड हाई है, और जहाँ ड्रिफ्ट स्पीड हाई है तो आई का एक्सप्रेशन क्या था, NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD। मतलब कि मोबिलिटी हाई मतलब कि इसका ड्रिफ्ट स्पीड हाई, ड्रिफ्ट स्पीड हाई मीन्स करंट यहाँ पे हाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे करंट विल बी हाई, और जहाँ पे मोबिलिटी स्लो है, लेस है, वहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड कम होगा। ड्रिफ्ट स्पीड कम है मतलब कि करंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि नो फील्ड, अगर यदि कोई फील्ड ही ना लगाएं तो तो हमारा मोबिलिटी होगा ही नहीं। जब मोबिलिटी नहीं होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है, ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी से ही हम लोग कह सकते हैं कि सपोज दैट एक मेटल है, इसमें मैंने फील्ड अभी नहीं लगाया है, तो क्या यहाँ पे थर्मल मोशन है इलेक्ट्रॉन का, बोलते हैं कि हाँ है भाई थर्मल मोशन इलेक्ट्रॉन का। क्या यहाँ पे ड्रिफ्ट मोशन है, तो ड्रिफ्ट मोशन नहीं है। तो क्या यहाँ पे करंट है, जब मैंने फील्ड नहीं लगाया है, जब फील्ड मैंने नहीं लगाया तो थर्मल वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, तो क्या यहाँ पे करंट है, नहीं। क्यों, क्योंकि करंट ड्रिफ्ट मोशन पे डिपेंड करता है, ना कि थर्मल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब भी फील्ड मैंने नहीं लगाया तो ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है, ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है तो हमारा करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन मोबाइल ही नहीं है, मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो मोबिलिटी को मैं थोड़ा सा फर्दर और ये करूँ तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला था E/m इंटू टाउ, E/m इंटू टाउ, यस, E/m इंटू टाउ बाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, तो E/τ/m, E/τ/m। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये इट इज़ रिलेटेड टू रिलैक्सेशन टाइम। तो म्यू, अगर रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, तो भाई ये हम लोगों ने बोला था कि ये मेटल पे डिपेंड, या कह सकते हैं मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसा हम लोग बताया था कि गिवन मटेरियल के लिए एट गिवन टेम्परेचर टाउ कांस्टेंट होता है। क्या मैं कह रहा था कि फॉर गिवन मटेरियल एंड गिवन टेम्परेचर ये टाउ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर टाउ कांस्टेंट है तो मतलब कि ये तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है।
एक बार फिर से जान लें कि मटेरियल हम लोग ये पढ़ चुके थे, ये मैंने बताया था कि ये जो फॉर एनी गिवन मटेरियल योर रिलैक्सेशन टाइम एट गिवन टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, मींस फॉर मटेरियल गिवन मटेरियल ये टाउ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो कह सकते हैं कि म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पे, और टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। तो फैक्टर दैट अफेक्ट दिस म्यू इज योर मटेरियल, फैक्टर दैट अफेक्ट दिस म्यू इज योर मटेरियल। सो दिस वाज योर मोबिलिटी। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द रेसिस्टिविटी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इन डिटेल पढ़ेंगे। रेसिस्टिविटी को 4 लिखता हूँ कि रेसिस्टिविटी को मैं थोड़ा इन डिटेल पढ़ूंगा और ये भी जानूंगा कि सो हाउ रेसिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी। यस, देखिए मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूँ और एनसीईआरटी के थ्रू ही जा रहा हूँ। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने सारा का सारा एनसीईआरटी से ही चल रहा हूँ, कोई भी आगे पीछे ना। जैसे हम लोग बात करें तो मेटल्स के लिए रेसिस्टिविटी हमेशा लो होता है। एंड एज वी मेटल्स कहने का मतलब कि कंडक्टर, जैसे मैं बताऊं कि कंडक्टर के लिए, मेटल कंडक्टर के लिए जो हमारा रेसिस्टिविटी होता है वो लो होता है। और इधर से मैं जैसे भी बढ़ता हूँ नॉन कंडक्शन के लिए, कंडक्शन से नॉन कंडक्शन की तरफ मैं जाता हूँ, नॉन कंडक्शन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, मतलब कि जैसे मेटल है, फिर उसके बाद फिर एलॉयज़ हो गया, एलॉयज़ का इंसुलेटर हो, मतलब यहाँ से देख रहे हैं मैं कंडक्शन से नॉन कंडक्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो हमेशा याद रखें कि रेसिस्टिविटी हमारी बढ़ेगी, है ना। जैसे मैं बताऊँ कि फॉर मेटल्स की मैं बात करूं तो मेटल्स के लिए अगर यदि आप रेसिस्टिविटी आप चेक करोगे तो देखोगे कि वहाँ पे वो 1.6 इंटू 10⁻⁸ के से स्टार्ट होता है। फॉर सेमीकंडक्टर्स उसका जो ऑर्डर है मेटल्स के लिए जो हमारा चल रहा है, ये सारा डाटा हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट, है ना। लेट मी सी, जैसे मैं सिल्वर की मैं बात करूं, यहाँ से सिल्वर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सिल्वर का जो दिया हुआ है यहाँ रेसिस्टिविटी वो है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर हमारा ये जो यूनिट है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸। मैं आगे बढ़ूँ फॉर सेमीकंडक्टर्स में जैसे देखता हूँ, सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर देखूँ तो इसके केवल मैं ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं देख रहा हूँ कि 10⁻⁵, ये देख रहे हैं कंडक्शन से नॉन कंडक्शन की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये कंडक्टर, अब ये सेमीकंडक्टर, ये एक नॉन कंडक्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 10⁻⁵ हो गया। मतलब यहाँ से आपका ये तो बढ़ गया, है ना। और मैं आगे जाऊँ इंसुलेटर के लिए, मैं इंसुलेटर जैसे मैं प्योर वाटर की मैं बात करूं, प्योर वाटर, तो यहाँ पे इसका जो इंसुलेटर दिया हुआ है ये 10⁵ में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका यहाँ तक में देखिए कंडक्टर से कंडक्शन से नॉन कंडक्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो ये यहाँ तक पहुँच गया। आगे मैं ग्लास और रबर की मैं बात करूँ, ये जो कि हमारा हो गया इंसुलेटर, प्योरली इंसुलेटर, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो ये दिया हुआ है 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁴ तक में चला गया। तो ये देख रहे हैं कि ये कितना कम था, ये उससे थोड़ा अधिक हुआ, ये और अधिक हुआ, ये बहुत अधिक हो गया। तो जैसे ही हम कंडक्शन से नॉन कंडक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ना इसमें एक और चीज़ मैं बात करूं कि रेसिस्टिविटी जैसे मैं बात करूं तो रेसिस्टर तो है, तो उनमें जो रेसिस्टर हैं तो उनमें रेसिस्टिविटी होगी। अब यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है कि कमर्शियल यूज़ के लिए जो रेसिस्टर्स जो होते हैं 2 तरीके से बनाए जाते हैं। कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए जो हमारा जो रेसिस्टर्स होता है वो 2 तरीके से बनाते हैं। एक होता है वायर वाउंड, और एक जो होता है वो होता है कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर हम लोग पढ़ लेंगे, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग जो कह रहे हैं कि ये वायर वाउंड और एक हो गया कार्बन रेसिस्टर ना। वायर वाउंड में क्या होता है कि जो तार को ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लपेट लपेट के बनाते हैं। आप लोग 10th में अगर यदि ये किए होंगे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जो एक वुडन ब्लॉक में मीन्स वुड का एक ब्लॉक था, उसमें ये इस तरह से लपेटा हुआ रहता था। तो एक वायर बाउंड रेसिस्टेंस हम लोग बनाते हैं, है ना। और एक होता है, लेकिन इसमें इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये काफ़ी बड़ा होगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो अब हम लोगों को तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी देखना है ना। कॉस्ट ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होगा हम लोग उसको हम लोग चूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी स्पेस भी लेता है। अब हम लोग क्या है कि मिनी से माइक्रो और माइक्रो से एकदम बहुत छोटे स्तर पे चले जा रहे हैं, तो ये तो काफ़ी स्पेस लेता है। तो हम लोग ये सब वायर बाउंड रेसिस्टेंस का यूज़ नहीं करते। तो अभी हम लोग के डेट में क्या यूज़ करते हैं, कार्बन रेसिस्टेंस। तो कार्बन रेसिस्टर में बताऊंगा आगे वाले वीडियो में मैं पढ़ूंगा कि कार्बन रेसिस्टर्स क्या होते हैं। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि ये काफ़ी सस्ता होता है, हल्का होता है, स्पेस कम लेता है, काफ़ी छोटा होता है ना। हाँ, एक और चीज़ जो मैं अभी देख रहा हूँ बुक में, यहाँ पे दिया हूँ कि ये वाउंड करने का क्या रीज़न होता है। जैसे वायर वाउंड में ये आप देखोगे कि आपके घर में या पोल पे जब भी हम लोग वो जो वायर में हुक लगाते हैं, वहाँ पे देखना आप ऐसे एक राउंड कर देते हैं लोग। तो वो क्यों है ये ऐसा, या राउंडिंग क्यों करते हैं? तो राउंडिंग करने का जो बेसिकली रीज़न ये है कि इसको राउंड करने से इसका टेम्परेचर सेंसिटिविटी कम हो जाता है। टेम्परेचर से सेंसिटिविटी कम होने से क्या होता है कि रेसिस्टेंस पे वो इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो लपेटने से यही होता है कि टेम्परेचर वाली सेंसिटिविटी कम हो जाती है ना। बट द प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम इज ये कॉस्ट इसका ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, है ना। ठीक है, तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए हम लोगों ने ये करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स। तो अगर यदि मैं बात करूं तो सीधे आप लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ चुका था कि सर रेसिस्टिविटी इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल स्पीड बढ़ा, टाइम घटा, रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया और रेसिस्टिविटी भी बढ़ गई। लेकिन ये जो कंडीशन था, ये हम लोग क्या प्रूव किए थे, यहाँ पे ओम्स लॉ प्रूव किए थे। तो ये किसके लिए था, ओमिक रेसिस्टेंस के लिए हम लोग बात की थी। यहाँ पे जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओमिक रेसिस्टेंस, उनके लिए हम लोगों ने बात किया था, ना कि ये सारे मेटल्स और सारे। अभी तो हमारे पास बहुत तरह की चीज उपलब्ध हैं, हम लोगों के पास मेटल हैं, तो भाई ये मेटल के लिए ये लागू हो ही जाएगा, है ना। एलॉयज हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, थर्मिस्टर्स हैं, सुपर कंडक्टर्स हैं, मीन्स इतने सारे चीज़ हैं। तो ये सारे पे टेम्परेचर का यही रिलेशन रहे उसके रेसिस्टिविटी पे, तो ये भी तो गलत है, ये तो सही नहीं है। तो भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे जानना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि हाउ द रेसिस्टिविटी वेरीज विद द टेम्परेचर। इसका एक एक्सप्रेशन है, आप लोग देखोगे बुक में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो ये है रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आप लोग इस तरह का एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपके क्लास 11th के हीट एंड एक्सपेंशन में जो था कि हाउ लेंथ एक्सपैंड्स ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। उसका ये था कि इंक्रीज इन द लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ
प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, कुछ इस तरह से था। तो उसी तरह से यहाँ रेसिस्टिविटी का भी एक ये आता है, रेजिस्टेंस का भी इसी तरह से आता है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये है क्या, ये सारा। तो ये जो है ये इनिशियल रेसिस्टिविटी है जो आपका गिवन टेम्परेचर के लिए जो हो रहा है, गिवन टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो हो रहा है, ये वो रेसिस्टिविटी है। ये जो है कि आपने कितना राइज किया टेम्परेचर, है ना। मान लेते हैं आपने 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री का जो राइज किया टेम्परेचर का, तो उसके बाद जो रेसिस्टिविटी होगा वो फाइनल रेसिस्टिविटी ये बताने वाला है, ये रोटी खाने वाली नहीं, मतलब जो रेसिस्टिविटी है एट टेम्परेचर टी। नाउ डेल्टा टी इज द राइज इन द टेम्परेचर एंड अल्फा इज योर थर्मल कोफिशिएंट, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट। ये यहाँ पे होता था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसको यहाँ पे हम लोग उसी से रिलेट किया जाता है। ये इसका डिटेल ये पढ़ना नहीं है, फिर भी बस बेसिकली जान लीजिए कि इधर से ही रिलेट होकर के आता है। तो उसका एक एक्सप्रेशन हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बस इसको आप जान लें कि ये कुछ इस तरह, ताकि याद रहे आपको। थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट को अगर यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ कि थर्मल कोफिशिएंट आखिर है क्या, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा का एक्सप्रेशन लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रो टी माइनस रो नॉट। देखिए यहीं से मैं लिख रहा हूँ, ये रो नॉट अल्फ़ा रो नॉट डेल्टा टी आएगा ना, तो ये रो नॉट इधर आ जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट बाय रो नॉट डेल्टा टी। तो इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ कि थर्मल कोफिशिएंट बेसिकली है क्या, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 1 कर देते हैं। इसको 1 करने के लिए हम लोग एक ऐसा कंसिडर करते हैं कि कंसिडर अ मेटल हुज रेसिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज 1 ओम मीटर एंड द राइज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। और आपने जो टेम्परेचर को राइज किया वो 1 डिग्री से राइज किया, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, अल्फा टी, ये हो जाएगा अल्फा रो टी माइनस ये 1 हो गया बाय 1 माइनस 1 इंटू 1 डिग्री मीन्स 1, तो ये रो टी माइनस 1। तो यहाँ से क्या आया, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो एक रूम टेम्परेचर पे जो रेसिस्टिविटी था और फाइनल रेसिस्टिविटी है आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उन दोनों के डिफरेंस ये क्या था, एक्चुअली में ये रो नॉट ही तो था एट रूम टेम्परेचर, जिसको हम 1 मान लिया तो हम आसान करने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही अल्फा है हमारा। तो इसको हम कह सकते हैं जितना रेसिस्टिविटी बढ़ेगी वही हमारा थर्मल कोफिशिएंट होगा, जितना रेसिस्टिविटी हमारा बढ़ेगा उतना ही थर्मल कोफिशिएंट होगा। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि रो नॉट जो हमारा है एट रूम टेम्परेचर हमने 1 ओम पर ओम मीटर ले लिया और राइज इन टेम्परेचर किया मैंने 1 डिग्री सेल्सियस का, तो 1 डिग्री सेल्सियस का किया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये नीचे तो 1 हो गया, तो रोटी माइनस 1, ये 1 क्या था, रो नॉट ही था, तो ये रो नॉट इनिशियल था, रोटी मेरा फाइनल था, तो दोनों के बीच में जो चेंज हुआ तो वही तो हमारा रेसिस्टिविटी है, थर्मल कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना से इंक्रीज कर गया, और जो रेसिस्टिविटी है ये सपोज दैट ये एक मेटल, इसका रेसिस्टिविटी समथिंग है, अब 1 डिग्री इंक्रीज करने पर जो हमारा रेसिस्टिविटी में जो इंक्रीज आता है वही हमारा हो गया थर्मल कोफिशिएंट। और जनरली ये याद रखें कि फॉर मेटल्स ये जो अल्फा है ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ये फॉर मेटल्स अल्फा जो है ये पॉजिटिव नेचर का होता है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस कर लेता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि मेटल्स के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि ये पॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब कि रेसिस्टिविटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये 1 से ज़्यादा ही होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आने वाला है, ये 1 से ज़्यादा होगा। तो मेटल्स के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो मेरा रेसिस्टिविटी भी
रेसिस्टिविटी के साथ साथ में रेसिस्टेंस भी मैं ले लेता हूँ, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों मेरा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है यही ओमिक रेसिस्टेंस के लिए भी यही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है एलॉयज। एलॉयज के में क्या होता है, यहाँ पे अगर यदि टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में नो चेंज, या कह सकते हो कि अगर चेंज आया भी तो वेरी लेस चेंज। इसीलिए जब हम लोग रेसिस्टेंस बनाते हैं लैब पर्पस के लिए तो हम लोग किसका बनाते हैं, मेटल्स का नहीं बनाते हैं, एलॉयज का बनाते हैं, ताकि टेम्परेचर के बढ़ने से उसके रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस पे कोई खास इफेक्ट ना आए, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे कोई खास इफेक्ट ना आए, है ना। नेक्स्ट